on the basis of morphological classification already completed. Now we are moving on the second type, that is on the basis of etiological. etiology के basis पे कितने types होंगे वो हम discuss करेंगे यहाँ पे. And first we already discussed, that is hemorrhagic bleeding. ये जो भी जो थोड़ी थोड़ी आपकी साउंड आ रही है ना वो सब बंद कर दो. I don't like any sound except myself. मेरी जो साउंड आती है वही पसंद है मुझे, बाकी को साउंड पसंद नहीं है बिल्कुल. यस, एक तो ये पंखे चलते हैं इतने सारे, उधर वो चलता है, ये आवाजें वैसे ही परेशान कर देती है, उसकी वजह से मुझे और जोर से बोलना पड़ता है, और मेरा वोकल कोड मुझे लंबे टाइम तक चलाना है. यस और नो, आपको तो चले जाना है अभी ये सही सेलेक्ट होके या नॉट से सेलेक्ट होके, लेकिन मुझे तो यही रहना है और इसको यूज करना है वोकल कोड को बहुत लॉन्ग टाइम तक. मैं नहीं चाहता हूँ या कैंसर हो जाए, लेरिंजियल कैंसर. इट्स अ कॉमन रिस्क फैक्टर. आई विल टीच यू लेटर ऑन अबाउट द लेरिंजियल कैंसर एंड द टीचर्स आर वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द लेरिंजियल कैंसर. सो इसीलिए मैं उसको कोशिश करता हूँ बचाने की. तो आप लोगों को साउंड बिल्कुल, बाकी ठीक है, साउंड मेरा आप सुन सकते हो, इतना बुरा नहीं है. यस, स्टार्ट करें. एनीमिया. सो एनीमिया की बात हम कर रहे थे और जो टाइप हम पढ़ रहे थे, हेमरेजिक टाइप ऑफ एनीमिया, हेमोलाइटिक और हेमरेजिक. ये तो कहां पहुंचा दिया इन्होंने स्लाइड को. यस, सो हेमरेजिक और एटियोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज हेमरेजिक एनीमिया. वेरी सिंपल. हेमरेजिक मींस ब्लीडिंग व्हेन पेशेंट इज लूजिंग ब्लड थ्रू एनी रीजन, किसी भी वजह से कहीं से भी ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी में. वी नो दैट वी हैव अ फिक्स अमाउंट ऑफ ब्लड, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट. यस, is the amount of blood which present in our body, approximately nearby 5 to 6 liter. Now if you are losing this amount with bleeding, then you will lose both component of the blood or only one component of the blood. There are two components of the blood, one is the blood plasma and second one is blood cell. So you are losing only the single one, any one like plasma or the blood cell, or you are losing both. दोनों जाएंगे साथ में, yes or no? So when there is a bleeding we are losing plasma as well as we are losing same, क्या lose करेंगे, blood cell. Now I will give an example. You have a big jar or a mug which filled it with lemon water. किसके साथ, lemon water. Here there is a tape होता है इसे बाहर निकालने के लिए. So it's a tape. It's filled with lemon water. लेमन वाटर यानी नींबू का जो रस है, पानी, आइस, शक्कर, नमक सब मिला के आपने बना रखा है. हाँ, शिकंजी, वेरी गुड. नाउ दिस jar is nearby approximately 10 liter size. Out of this 10 liter you remove 2 liter. 10 में से आपने कितना ड्रिंक कर लिया, 2 लीटर आपने बाहर निकाल के पिला दिया या पी लिया. After removing 2 liter, if I will ask you remaining 8 liter, ये जो पीछे 8 liter बचा है, this will have same level of salty taste, sweet taste, salt taste, water content, lemon content, everything will be same, or it will decrease or it will increase. Why? Because when we are removing the lemon water, everything is going out and it is distributed equally in every part. So जो पीछे बचेगा उसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. सेम यहाँ पे होगा. You have the 5 to 6 liter of blood, and out of this 5 to 6 liter, 1 liter is lost. When we are losing 1 liter blood, it will lose the plasma as well as it will lose the blood cells, and the concentration of the remaining blood cell will be equal. जो पहले था वही रहेगा, same concentration, percentage अभी भी क्या रहेगा, same रहेगा. That's why when somebody asks you which type of morphological anemia present in hemorrhagic anemia, the answer should be normocytic, normocytic, normochromic. Clear concept? Yes or no? Very good. So in case of hemorrhagic anemia, the most common type of morphological anemia which is present, that is known as normocytic, normochromic anemia. Clear ये first point? Next, तो इसके दो टाइप हमने डिस्कस किए थे. The first one is the acute hemorrhage, reduction in the total RBC. It may be accident or it may be hemophilia. So in case of acute bleeding, blood loss हो रहा है, वो sudden हो रहा है. Blood loss present in patient body suddenly, like कट लगा और blood निकल गया. और इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन और व्हाइट ब्लड सेल, WBC प्लेटलेट, जो भी सारा इक्वली लॉस होकर आपने स्टॉप कर दिया. सो वहां पे अदर कंपोनेंट लाइक जैसे हम आयरन की बात करें या अदर कोई सब्सटेंसेस की बात करें, तो उनका मेजर लॉस नहीं हुआ, इट्स एन एक्यूट लॉस. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ क्रॉनिक ब्लीडिंग और क्रॉनिक हेमरेज, लंबे टाइम से 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कंटीन्यूअस हेमरेज के थ्रू ब्लीडिंग लॉस, ब्लड लॉस हो रहा है. सो वहां पे आरबीसी लॉस हो रहा है, WBC प्लेटलेट सब कुछ लॉस हो रहा है, उसके साथ-साथ आयरन भी क्या होगा, कंटीन्यूअसली लॉस रहेगा. एंड व्हेन योर बॉडी लूजिंग continuously the iron, then you have a iron deficiency also in the patient body. और जब भी आयरन का डेफिशिएंसी होगा तो वहां पे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया चेंज हो जाएगा. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था आयरन के बारे में. आयरन क्या करता है, iron is responsible for the size as well as color both. So when iron amount is less, then the size will also small, microcytic, and the color will also less. So hypochromic. In case of chronic hemorrhagic anemia, the person will have microcytic, hypochromic anemia. But in case of acute hemorrhage, the person will have normocytic, normochromic anemia. Clear? याद रहेगा. So इसके अंदर कौन सा रहेगा आपका, normocytic, normochromic anemia, normochromic anemia. And in case of chronic hemorrhage, like due to continuous loss of blood, ulcer, piles, a lot of iron is lost from the body, so synthesis of hemoglobin is affected. In chronic condition, iron is also losing. So पहले RBC loss तो हो गया, उससे तो anemia हो रहा है, normocytic, normochromic. But now when bone marrow is going for the synthesis of RBC, there is no iron. Iron भी loss हो गया, अब iron नहीं है, तो उसे नया RBC जो है वो बनेगा नहीं, और जो बनेगा वो भी small and hypochromic होगा. इसलिए यहाँ पे anemia कौन सा होगा chronic में, hypochromic, hypochromic and microcytic, और microcytic hypochromic both are same. I think अभी तो आप समझ पा रहे हैं
कि किसका कमी होने से कौन से टाइप का ये क्रॉमिक और साइट होगा, समझ रहे हैं? एग्जाम में इन पे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मान लो इस पेशेंट आता है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, कौन से टाइप का एनीमिया होगा, है बताओ? वेरी गुड। सो इन प्रोटीन कंटेन हमने पढ़े थे विटामिन B12 फोलिक एसिड, वो सारे उसी के साथ प्रोटीन, यानी ये मैच्योरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस से ही तो सेल मैच्योर होगी। सो जब प्रोटीन नहीं होगा तो सेल मैच्योर नहीं होगी, एंड सेल विल बी इन द लार्ज साइज, सो मैक्रोसाइटिक बट आयरन इज देयर, सो नॉर्मोक्रोमिक। प्रोटीन जब डेफिशिएंसी होती है तो पर्सन विल हैव द मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अभी आगे आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, ये लिखिए। बोले कल ये तो लास्ट क्लास में लिखा था आई थिंक। वेरी गुड, बोला क्यों नहीं फिर? 10 मिनट निकाल दी इस पे। नेक्स्ट, हेमोलाइटिक एनीमिया। सो प्रीवियस वन इज द loss of RBC, that is the type of anemia जिसको हमने बोला hemorrhagic anemia, but in this condition RBC production is there, there is no blood loss, still person is having anemia. It means inside कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे RBC का कुछ ना कुछ destruction या hemolysis हो रहा है. So hemolytic anemia because of destruction of red blood cell. कैसे destruction होगा हम बात करेंगे one by one. So we already discussed about the RBC destruction process. पढ़ा था? अरे normal तो पढ़ा था. Normal RBC destruction process. So RBC destruction place. Graveyard is the spleen. Mechanism. किस mechanism पे ये destroy करता है? So it bases on the size of RBC basically, because of wearing or tearing effect. The size of RBC is very enlarged after nearby 90 to 120 days, and when the size of RBC is more than 8 micron, that RBC is not able to move inside the spleen, or when RBC is damaged it will move through a hypotonic solution and it will be enlarged. So RBC बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा? Restriction हो जाएगा और वो hemolytic hemolysis आपको मिलेगा. लेकिन यहाँ anemia कब होगा वो हम बात कर रहे हैं. So first one is excessive destruction of RBC while which occur due to the various causes such as, first one is chemical poisoning such as coal, tar, drugs like Dapsone. Dapsone is which group of drug? Dapsone is an antibiotic or something else? It's an antibiotic which comes under sulfonamide group of antibiotic. Sulfa group याद है? Cell का DSP, sulfasalazine, Dapsone, salicylic acid and para-amino-benzoic acid याद है? So this is the Dapsone. It's a very dangerous drug and it will directly attack on your RBC if the toxicity of the Dapsone is present in your blood. So इसलिए इसको limited देना है, unlimited नहीं होनी चाहिए sulfonamide related drugs. The next one is, this is the first one, chemical poisoning. Oh, everyone is enjoying here because this class is placed in the MCQ. So कहाँ डाल दिया? MCQ बेस में डाल दिया. इनको आ रहा मजा, वाओ एनीमिया हो रहा है. अभी मैं इनको पढ़ा के आया हूँ. So बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड आप एंजॉय करें इसी क्लास को, डोंट वरी. बिल्कुल सबकी क्लास स्टॉप हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गया है और कैमरा भी उधर मूव कर दिया है. ये भी नाराज हो गया बेचारा. है सवाई कहाँ है? वेयर इज सवाई? क्लास कहाँ डाला? कौन से बेस में डाला क्लास? है लिंक कहाँ डाला? ये सारे बच्चे अभी मैं पढ़ा के आया हूँ एमसीक्यू बेस में. है लिंक गया है एमसीक्यू बेस में. थ्योरी वाले तो वेट ही कर रहे हैं. नहीं वो सवाई ने उधर से लिंक पेस्ट गलत किया नीचे. यहाँ तो ठीक है. हैं बोलो उनको सही करेंगे. सो क्लियर है? लिख लिया? इट इज मोर बेटर टू यूज द व्हाइट बोर्ड. मूव करें. किसको चला भाई? आप लोगों को बातें करनी है. हैं भाई 1 मिनट नहीं मिलता बातें स्टार्ट. आप इससे अच्छा कुछ पूछ लिया करो तब तक. हैं कुछ नहीं पूछते हैं. अभी वर्ल्ड कप देखा सबने? हाँ देखो कितना जोर से आवाज है अभी. सो अरे मैं तो देखूंगा मेरा काम क्या है. मेरे पास सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब है, फैमिली है, नौकरी है, कार है, घर है, और क्या करना है? मैच देखूंगा नहीं देखूंगा? मेरे को पढ़ाई थोड़ी करनी है. मैं इसलिए तो कल छुट्टी रखा, पढ़ा नहीं था परसों. मैच देखा था रात को 2 बजे से 1 बजे तक, तो इसलिए कल छुट्टी हो गई. लेकिन आप लोग नहीं कर सकते कल छुट्टी रख देते. आप मैच देखा, आपको क्या करना है? पढ़ना. नहीं तो लोग देखा नहीं लोग कैसे चेंज होते हैं. वही हार्दिक पांड्या जो पहले रो रहा था, वो अभी देखो हीरो बन गया. लोगों को ऐसा कर दिया, नो कर दिया. आप देखो कोई बोल रहा है? लोग कितने जल्दी चेंज होते हैं. ये आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा सेम. आप एक खराब रिजल्ट तो लोग ऐसे गाली निकालेंगे गांव में जाती है. और जैसे सेलेक्टर पर मुझे पहले पता था ये कुछ बड़ा ही करेगा. सो ये कॉमन होता है. वो विराट कोहली एक मैच में रन नहीं बनाया उसने, सब गाली निकाली, इसको बाहर निकाल दो, ये जरूरत नहीं है, बुढ़ा हो गया, ये हो गया. और जब अभी उस मैच में इतने रन बना दिए, इतने रन बनाने से पहले भी गाली निकाल रहे थे. जब उसने 50 बॉल पे 50 रन बनाए तब भी लोग गाली निकाल रहे थे कि क्या कर रहा है. और जब उसने लास्ट में बना दिया और जीत गए तो ये हीरो था, इसने बनाया सबने. सो लोग कुछ नहीं होता है. हाँ वो तो है ही, वो तो बेचारा वो क्या करे. सो हाँ एवरीवन सेम यही रिएक्शन होता है. हम भी ऐसा ही करते हैं. जब अच्छा नहीं करते तो सब गाली निकालेंगे, अच्छा करेंगे तो सब अच्छा बोलेंगे. आपको भी यही करना है. रिजल्ट बस आपका मीटर जो करता है वो कौन करता है? रिजल्ट. आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो सब अच्छे हो जाएंगे, और जब रिजल्ट खराब तो फिर सब बुरे हो जाएंगे. तो बस रिजल्ट बेस्ट लेके आना है. नॉर्थ एग्जाम या ईएसआईसी एग्जाम आपके सर पे है. 7 तारीख बहुत जल्दी, 4 दिन 5 दिन बचे. आज तो 1 हो गया, बीच में 5 दिन है, 7 को एग्जाम है. यस तो अपना बेस्ट करना है.
और सबके मुंह को बंद कर दो, चेंज कर दो, सब सीट ले आएंगे आपके घर पे आएंगे। हाँ मजा आ गया, नर्सिंग ऑफिसर से वो बने हो, उनको लगेगा हाँ अब ठीक है। सो होना चाहिए ऐसा, उसके लिए तो मेहनत कर रहे हो गया भी स्टार्ट, इधर कर दिया सही। हाँ बिल्कुल, सीवी पूजा बिल्कुल स्वागत है आप सभी का इनोसेंट फेसेस के साथ में ऑफलाइन क्लास में। इनको मैं अभी इनोसेंट ट्यूमर पढ़ा रहा था और ये बोले थे इज लाइक अस, ये बिल्कुल तुम इनोसेंट ट्यूमर जानते हो, इनोसेंट ट्यूमर, इनोसेंट ट्यूमर आते हैं, बिनाइन ट्यूमर आल्सो नोन एज इनोसेंट ट्यूमर। सो जब मैं इनोसेंट पढ़ा रहा था ये बोल रहे सही हमारी तरह ट्यूमर है, हम भी बहुत इनोसेंट हैं, सो इनको इसलिए इनोसेंट बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो लिंक चेंज कराओगे या इनको पढ़ा दे? हाँ पढ़ा देते रहने तो चलो है, उनको भी ऐड तो करो जो लाइव बेच वाले हैं, वो बेचारे 18-20 हजार रुपए देके घर बैठे हैं, वो परेशान हो रहे होंगे। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करें, ये लिख लिया? अरे तो बातें सुन ही रहे थे। नेक्स्ट, मैं बातें इसलिए करता हूँ आप लिख लो तब तक, इतना टाइम का है। द नेक्स्ट इज इन्फेक्शन इन केस ऑफ मलेरिया, सेप्टिसीमिया, हेपेटाइटिस, लैप्टोस्पाइरोसिस कोज बाय लैप्टोस्पाइरा, कम्युनिटी में सर पढ़ेंगे आपको डिजीज अभी बहुत ही जल्दी, लैप्टोस्पाइरोसिस, जो लैप्टोस्पाइरा होता है उसके थ्रू आपको देखने को मिलता है। अच्छा स्टार्ट ही नहीं किया आपने इधर भी, इधर नहीं किया स्टार्ट? लिख लिया? नेक्स्ट, हाँ नहीं इधर नहीं, वो लिंक प्रॉब्लम है, उधर चलेगा, नीचे करेगा तब। इफ योर स्प्लीन, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड of RBC, और अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव ओवरस्टिमुलेट हो जाए, the spleen is overstimulated, in that situation it will kill more and more RBC and that may lead to hemolytic anemia. So if your spleen is overstimulated, it remove blood cells too early and too quickly. In some cases like the most common gold stone in hemolytic anemia is pigmented stone, ये एक बार क्वेश्चन आया था, highly pigmented stone कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? तो एनीमिया, जब बहुत ज्यादा हेमोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी? और बिलिरुबिन बनेगा, येलो पिगमेंट बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, एंड इफ इट इज वेरी एक्सेसिव बहुत ज्यादा बनेगा तो उससे क्या बन सकता है? स्टोन फॉर्मेशन, ये मिक्स हो जाएगा, दूसरे के साथ स्टोन बनेगा और पिगमेंटेड स्टोन होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? द पिगमेंटेड स्टोन हेमोलाइटिक एनीमिया में आपको देखने को मिल सकता है। वो करें, लिख लिया? After the anemia, we have the hemophilia, thalassemia, and then leukemia and lymphoma. These are the disease we will discuss here. और एक ब्लड की डिजीज है, प्लेटलेट्स रिलेटेड, जो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग रिलेटेड होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, छोटी छोटी हो तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका ब्लड क्या हो जाएगा, खत्म। निकलिए नेक्स्ट, एनीमिया अदर कोज जैसे एंजाइम्स, एंजाइम में प्रॉब्लम है, एंजाइमोपैथीज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इज G6PD, जानते हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, G6PD। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G6PD? है फोलिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, और कुछ? व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ G6PD? बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, वेरी गुड, अरे वो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज जीटी होता है। G6PD डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है न्यूबॉर्न बेबी में भी, क्या होता है उसमें? हेमोलाइसिस होता है। कहाँ चले गए थे आप इतने दिन छुट्टियों पे? ब्लड खत्म कर दिया हमने तब तक आप गए तब तक है। अरे उनको क्या ढूंढ रहे हो, किसको बोला, आपको क्या पता है? जिसको मैंने बोला वो समझ गए, बस आपको ढूंढना है और कौन है। सो G6PD, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज की जो फॉर्म है उनको कन्वर्ट करने में आपको रिक्वायर्ड होता है, एंड जब बच्चा बॉर्न होता है और वो ग्लूकोज इंटेक करता है तो उसको मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बाय बॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बट इसका एक अदर फंक्शन जो आरबीसी के लिए हेल्पफुल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, एंड वो है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आरबीसी, ये आरबीसी को डैमेज होने से बचाता है। इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी G6PD की तो उस कंडीशन में आरबीसी प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और जब प्रोटेक्ट नहीं होगा तो आरबीसी क्या हो जाएगी, डैमेज। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज अ प्राइमरी फंक्शन, वो तो है ही है। अगर उसको बचाने के लिए हम बच्चे में वो चीज डेफिशिएंट रख सकते हैं, जैसे ग्लूटीन प्रॉब्लम है तो ग्लूटीन नहीं देंगे, या और कुछ प्रॉब्लम है जो खाने से प्रॉब्लम होती है तो हम अवॉइड कर देंगे, बट आरबीसी हेमोलाइसिस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इसके साथ देखने को मिलती है। सो इफ द G6PD enzyme is deficient then it will lead to हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी और आरबीसी डिस्ट्रक्शन, इसमें कुछ लिखा है। हाँ यूजुअली इस सिम्टम आपको देखने को मिलेगा क्या, तो जब ये प्रॉब्लम होगी G6PD डेफिशिएंसी तो आपको देखने को मिलेगा जॉन्डिस और उसके साथ साथ में डार्क कलर ऑफ यूरिन, एंड द नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर आरबीसी डिस्ट्रक्शन सीन इन G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी में आरबीसी क्या हो जाती है, मैच्योर होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसका रीजन बिकॉज़ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आरबीसी, बट डेफिशिएंसी विल नॉट प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन। ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है? किस कौन करा सवाई? वेरी गुड, सवाई से कुछ काम होता है। नेक्स्ट, देख लिया? सो G6PD डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यू विल डिस्कस इन डिटेल इन पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स, जो बच्चों के डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पे सर बहुत डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे, इसका कोर्स, इसके सिम्टम, पर वो सिर्फ ग्लूकोज रिलेटेड पढ़ाएंगे, एंड वन सिम्टम विल बी देयर दैट इज आरबीसी हेमोलाइसिस, वहां पे एक सिम्टम लिखा होगा, मेंशन किया होगा। यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं आरबीसी हेमोलाइसिस एज अ प्राइमरी, हमारा जो मेन रीजन इसको पढ़ने का वो है आरबीसी हेमोलाइसिस को स्टडी करना। क्लियर है? लिख लिया? वो करें नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज, चलो भाई ये पीछे जा रहा है बार बार, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डीई,
डी इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इज पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जानते हो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर? ब्लड को ऐसे वो स्लाइड आती है ना, उस पे रखेंगे और उसकी एक फिल्म बनाएंगे, ऐसे स्मीयर बनाएंगे, ऐसा पूरा फैला के स्मीयर बनाएंगे, फिर उसको क्या रखेंगे माइक्रोस्कोप में, फिर उसको ऐसे देखेंगे। एंड जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बाइट सेल एंड हेंस बॉडी प्रेजेंट। सो जब इसको आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज द बाइट सेल। बाइट सेल का मतलब ये नॉर्मल है, इसका टुकड़ा यहाँ से टूट गया, ठीक है बाइट सेल, दिस इज नोन एज बाइट सेल। एंड ये जो सेल है इसके अंदर कोई ब्लू ब्लू जो डॉट दिख रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं? हेंस बॉडीज। एंड ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? तो आंसर होगा हाइड्रेशन थेरेपी दो, बाकी जो कोज है उसको एलिमिनेट करो, लाइक हेमोलाइसिस हो रहा है तो उसको क्यों हो रहा है उसको हटाओ, प्रिवेंट करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करो, जो उसका कोज है उसके साथ हाइड्रेशन प्रोवाइड करें ताकि बॉडी का वॉल्यूम मेंटेन रहे। सो नेक्स्ट पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, ठीक है पाइरुवेट, इट्स ए पाइरुवेट इज ए पाइरुवेट क्या है? कुछ भी नहीं बताते हो आप लोग, कुछ तो बताओ सर ने अभी तो पढ़ा है न्यूट्रिशन। पाइरुवेट कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, कार्बन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन क्या है ये? पाइरुवेट क्या, ये भी नहीं पता है? ऐसे सुना है मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, सुना है? ऐसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बाद पाइरुवेट होता है कुछ ऐसा? न्यूट्रिशन पढ़ा है सर अभी आपको, तो इट्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ओनली, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। सो ये पाइरुवेट काइनेज इज एन एंजाइम व्हिच मेटाबोलाइज द पाइरुवेट, पाइरुवेट को क्या करेगा? मेटाबोलाइज कराएगा, और ये जेनेटिकली बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा एनीमिया के अंदर। ये क्या है? आई थिंक मेरी इस पीपीटी का प्रेजेंटेशन किसी ने उल्टा कर दिया। हाँ यस नहीं लिखा, हाँ ये लिख लो। चलिए ये स्लाइड बाद में था और वो स्लाइड पहले था, इसको उल्टा पता नहीं कैसे हो गया ये। कोई बात नहीं, आप लिख लो। देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नोन एज स्पाइरोसाइटोसिस। स्पाइरो, स्पाइरो मींस स्क्वायर शेप होता है, स्फेरिकल शेप। व्हाट इज स्फेरिकल शेप? द नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज इट्स बाइकॉन्केव डिस्क शेप, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, लाइक एन एल्पेनलिबे चॉकलेट, याद है भूल गए? ऐसे राउंड राउंड बीच में से ऐसे होता है, देखा एल्पेनलिबे वैसा सेम। बट इन केस ऑफ ये लिख लिया, आगे मूव करूं। हेरिडिटी प्रॉब्लम, जिसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं स्पेरोसाइटोसिस। स्पेरोसाइटोसिस इन व्हिच आरबीसी इन द स्फेरिकल शेप, यानी ऐसे राउंड से गोल गोल होता है, बॉल होती है ना, बॉल क्रिकेट वाली बॉल होती है, वैसी आरबीसी हो जाएगी। और वो आरबीसी फंक्शनल तो काम कर सकती है, फंक्शनल इट मे वर्क, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन केस ऑफ जब स्प्लीन में पहुंचेगा तो राउंड शेप आरबीसी को स्प्लीन क्या बोलेगा? एबनॉर्मल है, ये एनलार्ज आरबीसी, वहां जाके उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, उससे उसका एक्सेसिव क्या होगा? हेमोलाइसिस होगा। सो आरबीसी का शेप अगर हम बात करें तो कौन सा होना चाहिए? इट ओनली इन द बाइकॉन्केव डिस्क शेप, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी? डैमेज कर दी जाएगी। सो यही रीजन है इन केस ऑफ स्पेरोसाइटोसिस इट्स अ हेरिडिटी प्रॉब्लम, ऑटोहेमोलाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स, इसमें क्या आएंगे? तो आंसर इज एनीमिया, जॉन्डिस एंड स्प्लेनोमेगाली। ट्रीटमेंट इज, भाई इसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? राउंड शेप आरबीसी को, बॉल की तरह राउंड शेप को स्प्लिन करेगा। आई ऑलरेडी मेंशन दैट कि दिस इज फंक्शनली ओके, फंक्शन कर सकती है, बट स्प्लिन के अंदर ये क्रॉस नहीं कर सकती है, तो स्प्लिन डिस्ट्रॉय करेगा तो स्प्लिन को क्या कर दो? कट करके हटा दो, स्प्लेनेक्टोमी कर दो, अब डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ओ माय गॉड, एक्वायर्ड के अंदर एक और प्रॉब्लम लिखी हुई है, वो क्या है? प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया, पीएनएच, सुना है पहले ऐसा? प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल, व्हाट इज नॉक्चुरल? है नॉक्चुरल इज when person pass involuntary urine in night time, bed waiting करना नाइट में, that is nocturnal। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि नाइट में ही पास करता है? स्प्लिन को कट कर देंगे तो आरबीसी लीवर के पास है ना, लीवर है, बोन में तीन ऑर्गन बताए थे ना, स्प्लिन, लीवर एंड बोन मेरो, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो स्प्लिन नहीं है तो लीवर है, लीवर नहीं है तो बोन मेरो है, और फिर तीनों ही नहीं है तो आदमी भी नहीं है, फिर बाद में क्या करेगा जिंदा रह के? यस। सो हमारी बॉडी जो बनाई गई है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। इफ एनी वन पार्ट इज नॉट वर्किंग देन वी हैव मल्टीपल अदर ऑर्गन्स और द पार्ट व्हिच स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट, लाइक बायोलॉजिकल क्लॉक, पाइनल ग्लैंड जो है वो क्या हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी, उसका क्या हो जाता है? हट जाती है, एट्रोफी हो जाती है पिनियल ग्लैंड। लेकिन फिर भी आप उठते हो सुबह 5 बजे 6 बजे, अलार्म बजता है ऑटोमेटिक, उठते नहीं उठते हो? कौन उठाता है फिर? सो उसकी जगह काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस करता है टेंपरेचर रेगुलेटरी सेंटर, हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा वन मोर थिंग्स इज लिम्बिक सिस्टम, प्राइमरी जो आपका इमोशनल ब्रेन होता है वो कौन है? लिम्बिक सिस्टम। अगर लिम्बिक सिस्टम में इंजरी हो जाए तो फिर इमोशन नहीं आते हैं, फिर आप रोते नहीं हो? क्या कुछ नहीं होते हो? क्यों होते हो? बिकॉज वी हैव अ सेकंड इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी, दैट इज हाइपोथैलेमस, अगेन इट्स सेकंड इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। अभी नर्व्स पढ़ा है नहीं ना, अभी बीच में थोड़ा बचा हुआ है, अभी पढ़ेंगे, थोड़े 2 दिन बाद पढ़ेंगे उसको हम। सो दिस इज अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? तो आंसर होगा ह्यूज और सीवियर आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इट्स डिस्ट्रक्शन इज ऑटो इम्यून, इट्स ऑटोलाइटिक। ऑटो इम्यून समझते हो? when our own body system is destroying our own body tissue or body cell, that is known as autoimmune. So it's an autoimmune process or autoimmune disease. Second thing, ये किसके ऊपर अटैक करती है डायरेक्टली? RBC. In this disease there is a specific trid which is known as trid of PNH, trid of PNH. The first one is hemolytic anemia, hemolytic anemia. And second thing, in this disease one more problem is there, that is the decreased production of
RBC, WBC and platelet because of directly attacking on the bone marrow also. RBC को destroy करेगा, उसके साथ साथ bone marrow के ऊपर भी अटैक करा disease, और उससे RBC, WBC और platelet का लेवल क्या हो जाएगा, reduce, and that is known as pancytopenia. And when there is a excessive destruction of red blood cells or platelet level is very low, one more problem will occur, that is known as thrombosis, yeah, thrombus formation, thrombosis. So these three are the classical symptoms of this PNH, proximal nocturnal hemoglobinuria. यूरिन के अंदर क्या आएगा, hemoglobin आएगा, because of RBC restriction वाला सीधा hemoglobin बाहर निकल रहा है. Because this autoimmune disorder directly attack on bone marrow, so red blood cell, WBC and platelets level is very low, that is known as pancytopenia, and huge number of red blood cells are damaged and they will form a plug, और उससे thrombus formation हो सकता है, thrombosis will be there. So these are the three classical. platelet भी नहीं होगा, thrombus बनने के chances बढ़ जाएंगे, तो three classical, or we can say triad of PNH. इसमें कुछ लिखा है, autoimmune hemolytic anemia, autoimmune disorder है, very good. और क्या लिखा है, thalassemia, और क्या है, sickle cell, हाँ ये यहाँ तक हो गया. These all are acquired problems जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे. These are the acquired, proximal nocturnal hemoglobinuria, autoimmune disorder, thalassemia, sickle cell anemia. ये तो मैं separately आपको भी पढ़ाऊंगा, thalassemia पढ़ाऊंगा, autoimmune sickle cell anemia जो है वो भी हम आगे पढ़ेंगे. How the sickle cell RBCs are produced and what are the cause for this disease. अरे बहुत जल्दी आ गए आप लोग, हैं? We already completed half of the class. थोड़ा जल्दी आना है? पहला क्लास नहीं पढ़ते हो आप लोग? ऐसा मैं कभी-कभी देखता हूँ कि या तो कुछ आपको शेड्यूल तो पहले मिल जाता है आजकल, तो आपको पता होता है पहली क्लास क्या है, दूसरी क्या है. कुछ तो पहली क्लास जब मैं ले रहा होता हूँ तो मेरे साथ साथ देख लेके निकल जाते हैं, और जब मेरी क्लास सेकंड होती है तो कुछ बाद में आ रहे होते हैं. व्हाई? फर्स्ट क्लास ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने, कम्युनिटी हो गया पहले ही, यू ऑलरेडी कंप्लीटेड. बंद कर दे कम्युनिटी, मेरी तो क्लास लगा देते रोजाना. नेक्स्ट लिख ले. सो दिस इज द हेरिडिटी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनीमिया. कौन कौन सी ऐसी हेरिडिटी प्रॉब्लम्स है जो एनीमिया कोज कर सकती है, उसमें एक प्रॉब्लम हमने देखा, दैट इज स्पेरोसाइटोसिस, एंड दीस आर द एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स व्हिच कैन कोज एनीमिया, लाइक प्रॉक्सिमल नॉक्टुरल हेमोग्लोबिनुरिया, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया. अब हम बात करेंगे, हाँ यहाँ आया, मैं बोला उल्टा हो गया था ये, अब मेन अभी आया यहाँ पे. वो जो पहले हमने डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन लिखा था वो सिर्फ किसका था, G6PD के लिए लिखा था. अभी हम किसकी बात करेंगे, एनीमिया का मेन डायग्नोसिस कैसे होगा. सो कोम्स टेस्ट पढ़ा था, याद है? कौन बताएगा कोम्स टेस्ट? और अब तो ऐसे जबान पे होना चाहिए कोम टेस्ट क्या होता है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोम टेस्ट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोम टेस्ट? टू डिटेक्ट एंटी RBC antibodies, the antibodies which is destroying red blood cell, that is known as anti-RBC antibodies. So the purpose of COMB test is to detect the anti-RBC antibodies, and it is a type of antigen antibody reaction test. There will be two types of this test की बात करें तो दो टाइप के होंगे, direct and indirect. Direct means you are measuring the anti-RBC antibody which is present on surface of red blood cell, and indirect means when this antibody present in plasma. Very good. So ये प्रॉब्लम हो सकती है कि anti-RBC antibodies बहुत ज्यादा है, वो RBC को destroy कर रही है, उससे एनीमिया हो जाएगा, हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा. यस, तो COMB टेस्ट कर सकते हैं. और बाकी इसमें जो लिखा है RBC डिटेक्ट एंटीबॉडी लिख लिया था आपने, सरफेस पे होता है जो. मैनेजमेंट ऑफ हेमोलाइटिक, अरे कोम टेस्ट नाम लिखना है केवल, टेस्ट पूरा पढ़ा दिया मैंने, और क्या इसको वापस सेम टू सेम लिखना है, जस्ट मेंशंस द कोम टेस्ट ओनली. अब आप लोग बताएंगे मैनेजमेंट ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया और मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक एनीमिया, क्या क्या मैनेजमेंट आप करोगे. ये इनका नहीं चला है आई थिंक, बताओ भाई, लिख लिया? तो कल सभी अच्छे से पढ़ के आना है, और 5 बजे बाद जब हम क्लास में मिलेंगे 5:30 बजे, तो सबके चेहरे से खिले खिले होने चाहिए. यस और नो? लाइव एज 9 सेट में सेलेक्ट हो गए, ऐसा होना चाहिए, तब तो आएगा मजा आपको भी. और जो पहली बार आए हैं अभी इसी वीक में आए हैं उनको भी आना है. कोई है जो आज ही आया कल आया? कौन है? एक ही है. और कोई है इस वीक में? कौन कौन आए हैं? 2 3 3 4 है, तो डरना नहीं, आप सबको आना है. फर्स्ट वीक हो, पहला दिन हो, कल भी आए हो तो भी आ जाना है. कल मतलब डे आफ्टर आज के बाद जो आने वाला कल है, उसमें भी आए तो भी टेस्ट देने तो आना ही है, क्योंकि उससे आपको इवैल्यूएशन, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल था लास्ट टेस्ट में भी, मैंने पूछा था कौन थे वो तो पता नहीं, मैं भूल गया अभी, पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ नहीं. हाँ हाँ यही थे, तो इनके नंबर उस टाइम भी अच्छा आए थे, पहली बार टेस्ट दिया फिर भी कितने मार्क्स आए थे, 45 आए थे. और इनसे बहुत सारे थे जो बहुत वीक से बैठे उनके कमाए, तो उन सबको क्या करना है इस बार, इनसे ज्यादा लाने, और आपको क्या करना है, इन सबसे ज्यादा लाने. देख लो आप, ठीक है, मूव करें आगे. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया. जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेन किलर. पेन किलर क्यों देना है, हेमोलाइसिस हो रहा है आरबीसी का, और एनाल्जेसिक लगा दो. पेन किलर क्यों देना भाई, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग पेन किलर टू दिस पेशेंट, आरबीसी बढ़ाने के लिए. सो देयर इज अ कांसेप्ट, समझे पहले कांसेप्ट समझे. लाइक जब हम कीमोथेरेपी लगाते हैं, व्हेन वी आर गिविंग कीमोथेरेपी, there is a big problem which is known as pancytopenia with chemotherapy. All the blood cells level are reduced, and the major issue is related to white blood cell. RBC level low होगा तो आप fatigue feel करेंगे, tired feel करेंगे, oxygen level कम रहेगा बॉडी में, so you feel tired, and if you are feeling tired just sleep, काम मत करो. क्या कोई प्रॉब्लम है? प्लेटलेट लेवल रिड्यूस होना, that may be problematic because it can having a risk for bleeding, but उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप चाकू हाथ में मत लो, काम ही मत करो, सोते रहो, इंजरी नहीं होगी और ब्लीडिंग नहीं होगी. बट द प्रॉब्लम इज WBC, white blood cell. The white blood cell is a cell which providing you a protection, it's a immune protective cell, and जब ये लेवल लो होगा तो आपका immune system weak हो जाएगा, and when your immune system is weak, then multiple types of bacteria is waiting for you, they're just finding an opportunity
That's why it is known as opportunistic infection. When you give opportunity to this bacteria or virus, they will attack on your immune system and you will be suffering as an infection. आपको infection हो जाएगा. उससे हम नहीं बच सकते हैं, उससे हम कोशिश कर सकते हैं, पर फिर भी हो सकता है. और उसी को प्रिवेंट करने के लिए जब भी आप कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं तो पेशेंट को एक टेस्ट हमेशा करके ले जाना होता है. CBC. Without CBC कभी कीमो नहीं लगाते. एक दिन पहले CBC करवा के ले जाना होता है. And if your blood count is very low, white blood cell count is less than 4,000, then the chemotherapy is not given to that patient. उसको हम पहले blood transfuse करेंगे, बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देंगे या उसको डाइट में या जो भी है बोलेंगे करो, सब ध्यान रखो. So वहां पे हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं. Like red blood cell इंक्रीज करने के लिए हम लगाएंगे. We have a natural content in our body that is erythropoietin hormone which is responsible for erythropoiesis. So we have synthetic erythropoietin also. हमारे पास बाहर क्या मिलता है? Synthetic erythropoietin होता है. आप क्या लगा दो, उसको इंजेक्शन लगा दो. For the white blood cell leukopoiesis required leukopoietin hormone and that is also available in synthetic form. And for the platelet synthesis required thrombopoietin hormone that is also available in the synthetic form. So आप अलग अलग इंजेक्शंस लगाएंगे, पेशेंट को लगाएंगे. लाइक प्लेटलेट के लिए इथ्रोपोइटिन सिंथेटिक फॉर्म जो अलग अलग नाम से आता है, मल्टीपल नाम से इसके होते हैं, इथ्रो इपोट नाम से आता है, इपोइटिन, बहुत सारी कंपनीज अपने नाम रखती है, वो आप लगाएंगे सबक्यूटेनियस और उससे आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ेगा, बोन मैरो स्टिमुलेट होगा. आप व्हाइट ब्लड सेल के लिए कॉमन एग्जांपल इस पिलग्रासिन आपने बहुत बार सुना होगा. पिलग्रासिन इंजेक्शन इज वेरी कॉमन इंजेक्शन व्हिच यूज्ड इन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी. बिफोर कीमोथेरेपी आप पेशेंट को पिलग्रासिन लगाते हैं, इससे ब्रांड नेम, पर उसमें होता क्या, सिंथेटिक इथ्रो ल्यूकोपोइटिन हार्मोन. सो आप लगाएंगे, उससे बोन मैरो स्टिमुलेट होगा, क्या बनेंगे, व्हाइट ब्लड सेल बनेगा. सो आपकी एग्जांपल देता हूं मैं कि आप कोई वर्क करते हैं, किसी भी वर्क को करते हैं, आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं और मैंने आपको लगाया एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन और आपने उस काम को कर दिया आधे घंटे में खत्म. और खत्म करने के बाद जैसे स्टेरॉइड का इफेक्ट खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा आपके साथ, फटिंग नहीं, पैर से फटेंगे, राम जी आ जाएंगे और आप क्या करें, होता है नहीं होता है, जोश जोश में ऊपर चढ़ तो गए, उतर भी गए, फिर नीचे आने के बाद चलते आप तो होता है. इट्स वेरी कॉमन. सो उसका रीजन क्या है कि आप अपनी बॉडी को नॉर्मल से ज्यादा वर्क करवा रहे हैं. आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया और एक दिन जोश आया, आज से जिम जाऊंगा या जाऊंगी, और वहां जाके ऐसे कांच में खड़े होकर पता नहीं क्या क्या किया और ऐसे पता नहीं वहां फोटो ले रहे हैं, हाँ कुछ तो हो रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं, वो कांच ही ऐसा लगाते हैं वहां पे ताकि आपको थोड़ा ज्यादा ही दिखे. मिरर इज द टाइप ऑफ वी कैन से इल्यूजन क्रिएटिंग थिंग्स है जो आपको इल्यूजन करता है. आप कभी जाओगे बार्बर शॉप पे जाना या फिर किसी ऐसी जगह जो सलून या ब्यूटी पार्लर जाना, वहां देखना कि वहां का जो मिरर होता है वो अलग होता है. जो आप घर पे मिरर में देख जाते अच्छा नहीं लग रहा, वहां जाते आप अच्छा हो, मैं इतना ब्यूटीफुल है दिखता है. इट्स ए इल्यूजन ओनली, नथिंग एल्स. ये आपका क्या है, इल्यूजन है. इट्स अ फॉल्स बिलीफ. आपका जो आपका रियल है उससे वो फॉल्स दिखा रहा है आपको, गलत परसेप्शन है आपका. सो उस टाइम आप जोश जोश में करते हो एक्सरसाइज, पर जब आप घर पहुंचेंगे तो फिर बाइसेप और ट्राइसेप जवाब दे रही होती है, हाँ रुको तुम, फिर आप हाथ ऐसे होता है, हाथ भी ऐसे रहते हैं, वो पास में भी जाता है, होता है ये थाई हैमस्ट्रिंग मसल्स, चलने भी ऐसे, चाल भी ऐसे जाने. व्हाई है, बिकॉज़ देयर आर, जब भी हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, सेल प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं aerobic pathway. But when you require extra energy, cell will use both pathway, aerobic as well as anaerobic. And when cell is using anaerobic pathway and product is lactic acid, and that lactic acid is responsible for the pain. दर्द का मेन cause क्या है, lactic acid. So अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब जब भी जिम जाओ तो पहले सुबह उठते ही एक पीसीएम खा के जिम जाना है, पैरासिटामोल. So उसके बाद दर्द नहीं होगा. Why? Because वो पैरासिटामोल मसल्स को जो पेन लैक्टिक एसिड हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके आपका दर्द गायब कर देगा और आप कर पाओगे. So यही रीजन है, जब भी हम किसी भी पेशेंट में आरबीसी डब्ल्यूसी या प्लेटलेट प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो उससे पहले उसको टैबलेट पीसीएम दिया जाता है. अगर किसी ने कीमोथेरेपी या डे केयर में वर्क किया है तो वहां देखा होगा, एवरी पेशेंट बिफोर गिविंग दिस पिलग्रासिन इंजेक्शन और कीमो ड्रग वी विल गिव पैरासिटामोल और उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाते हैं. व्हाई? बिकॉज़ बोन मेरो को एक्स्ट्रा वर्क करना है और एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो पेन होगा, बॉडी में बोन पेन होगा और उसी बोन पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं, पैरासिटामोल. बट वो कांसेप्ट पढ़ने से पहले आगे चलते हैं. इसमें क्या लिखा है, एक होम टेस्ट वापस आ गया, ये काम नहीं कर रहा है. सो पेन रिड्यूस करने के लिए आपको क्या लगाना है, पैरासिटामोल देना है. हाइड्रेशन थेरेपी आपका जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू रिप्लेस द आरबीसी डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट्स, और उसके साथ साथ में हाइड्रेशन के साथ फोलिक एसिड आपके आरबीसी प्रोडक्शन कराएगा. पेनिसिलिन अगर किसी तरह का इंफेक्शन हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल कम होने से उसको ट्रीट करेगा. ओके, इट इज नॉट वर्किंग. डाइट में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन दे दो, सब दे दो. पोजीशन क्या देनी है पेशेंट को, सो यू शुड प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन, जिसमें उसको कंफर्ट लगे उसमें सुला दो. बट ध्यान ये रखें कि इन आवर बॉडी द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल इन आवर बॉडी इज द वन सेल व्हिच इज नोन एज न्यूरॉन. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको प्रोटेक्ट करना मस्ट, because all other cells are able to regenerate but neuron is not able to regenerate, and I already explained you in previous class, because neuron does not have any type of centrosome and centromeres. So neuron cell अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता और अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर परमानेंट वो डिस्ट्रॉय रहेगा एंड पर्सन जो है वो परमानेंट जिंदा लाश बन जाएगा. पर्सन विल बी लाइक ए जिंदा लाश. इट्स ए लाइव बट डेड पर्सन की तरह वर्क करेगा और व्हील चेयर पे बिठा दो उसको घुमाते रहो. हां देखा है मूवी से दिखाते हैं कोमा वाला पेशेंट जैसे. सो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हेड शुड नॉट बी एलिवेटेड. अगर आपने हेड को एलिवेट किया तो क्या होगा, already blood is less in body because of the hemolytic or the bleeding problem. Gravity का force जो है वो opposite direction में होगा, so blood supply toward the brain will reduce. जब आप head को up करेंगे तो blood नीचे की तरफ आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, और it will decrease the blood supply to the brain. और उसको prevent करने के लिए आपको head को थोड़ा low forward position में रखना है, high forward या forward position provide नहीं करनी. Clear? Next, knee get elevated. देखा है knee get, जब कोई आपको कुछ सुना देता है या आप रो रहे होते हो तो पैरों में सिर डाल के रोते हैं, होता है? नहीं होता है? वो ऐसा क्यों करते हैं तो आपको पता है? You know that the concept. उसका रीजन जानते हो? There are so many reasons. The first reason is, you know that when you are crying, you not look beautiful. So you are just trying to hide your face. आप अपने चेहरे को छुपा रहे हो. ऐसे तो नहीं लगते. हाथ मुंह में रहते हैं. Second thing is, when you are crying, you know that you are not crying actually. You are just doing a drama. And if you are doing a drama and somebody comment outside से फिर वो आपको चिढ़ाने के लिए कमेंट करते हैं ना, तो आपको अंदर से हंसी आती है बात बीच-बीच. And when you are crying like in face और फिर हंसते हैं तो फिर पता चल जाएगा. So उधर आप हंस भी सकते हैं. No problem. कोई देख नहीं रहा है. Next, आगे इसका रीजन समझते हैं क्यों रखना है पैरों के ऊपर. अरे समझ तो गए? पोजीशन. मैं तो अभी बैठ नहीं सकता, इट्स वेरी टाइट, बैठ नहीं पाऊंगा नहीं तो. सो ऐसे सीधा बैठना, पैरों को ऊपर रखना, नी को ऐसे बेंड करके रखते हैं, उससे क्या होगा, हाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, इट विल बी मोर बेटर. सो दिस इज द पर्सन, इट्स द पर्सन जिसके
It should be like this. So the person should be, अरे wait करो अभी पूरा नहीं हुआ. It's very sad person. It's a very sad person because it's having an anemia. It's not a happy person and it's sitting in supine position with the leg in bended elevated position. So इससे क्या benefit मिलेगा? See, when you are doing this type, the vein will be go like this. ऐसे होगा. As well as artery will also go like this. Oh, artery should be in the red color. This is the artery. Which vessel has larger in the diameter? Artery or vein? Vein. So vein bend होगा तो इतना ज्यादा issue नहीं होगा. There will be no major issue. But when artery is bended, आर्टरी का डायमीटर पहले से ही स्मॉल है और अगर ये बेंड होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि दिस विल बी लाइक दिस. सो देयर विल बी लेस ब्लड सप्लाई टुवर्ड दिस एरिया. नीचे के पार्ट में ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज. एंड आर्टरी के साथ साथ वेन तो बड़ी है, ओपन है, तो ब्लड वापस आ सकता है इजीली. सो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो लोअर पार्ट जो हमारा रिस्पांसिबल होता है हाईएस्ट वीनस ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ रहता है लोअर बॉडी पार्ट में, वो अमाउंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस. एंड पैर अप रहेंगे तो ग्रेविटी से ब्लड हट की ओर आएगा. सो उससे आपका बेनिफिट रहेगा पर्सन में. तो इसके लिए आपको ये नी गेट एलिवेट रखना है और ये लिखा भी है टू इंक्रीज द वीनस फिल्टर. वेरी गुड. नेक्स्ट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया. Nutrition deficiency anemia. In nutritional deficiency anemia, the protein deficiency anemia due to the deficiency of protein. Protein is required for the cell maturation. RBC को क्या करना है? Mature करना है, उसके लिए आपको चाहिए. And that's why the person will have the microcytic. It's micro or macro? It should be micro or macro. Protein. So understand करते हैं इसको भी. Protein की बात करें, protein is responsible for the growth and development of cell. Growth and development. As well as the cell membrane. जो cell membrane होती है वो भी कैसे बनी होती है? Lipoprotein. It's a lipoprotein membrane. And when this protein content is very low, this cell membrane will be large or is small. बड़ा रहेगा छोटा. जब कंटेंट ही कम है तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा छोटा बनेगा? छोटा ही बनेगा, क्योंकि सही नहीं. मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था आटे वाला. दिस इतना आटा बोल इतनी बड़ी रोटी बना दो, क्या पॉसिबल है? नहीं है. जितना होगा उतना ही बनेगा. प्रोटीन कंटेंट इज वेरी लेस, सो सेल मेम्ब्रेन विल आल्सो स्मॉल. एंड डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, दिस विल रिक्वायर अगेन प्रोटीन, और प्रोटीन का अमाउंट है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये फिर से कम आपको देखने को मिलेगा. साइज भी माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट भी क्या रहेंगे? कमी होंगे. आयरन बहुत ज्यादा है, बस सिर्फ प्रोटीन की कमी है. ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यस और नो? प्रोटीन कंटेंट जो हम खाते हैं उसी के अंदर आयरन भी आपको मिलता है. अभी आगे आयरन भी पढ़ाऊंगा मैं इसकी जस्ट बाद में. नेक्स्ट, आयरन, इधर नाम भी लिखा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. इसमें भी आपको क्या मिलेगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. ये तो आपने पहले पढ़ लिया, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक. आयरन इज रिस्पांसिबल फॉर टू थिंग. वन इज द साइज मैच्योरेशन, सेकंड इज फॉर कलर मैच्योरेशन. एंड व्हेन आयरन इज लेस देन साइज विल आल्सो स्मॉल एंड द कलर विल आल्सो लेस. इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के व्यू से अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू पॉइंट अबाउट आयरन इन प्रीवियस क्लास. अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे आयरन के बारे में. सो व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन योर ब्लड? नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड आयरन 2 to 5 ग्राम, दैट इज द आयरन व्हिच इज प्रेजेंट इन योर ब्लड. एंड अगर हम इसको पर डीएल बात करें तो उस दिन भी बताया था 75 to 175, 65 to 165 मेल एंड फीमेल माइक्रोग्राम पर डीएल. सो स्टार्ट करें. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. आयरन, आप लोग क्या क्या जानते हो आयरन के बारे में बता दो. रेस्ट आई विल टेल यू. अमाउंट पता हो गया कितना होता है, पता चल गया. सो द नॉर्मल आयरन लेवल इज 2 to 5 ग्राम इन योर टोटल ब्लड और बॉडी. बॉडी में कितना होता है? 2 to 5 ग्राम होता है. द नेक्स्ट इज डीएल, जो हम पर डीएल पे निकालते हैं, दैट इज 75 to 175 माइक्रोग्राम पर डीएल इन मेल एंड 65 to 165 माइक्रोग्राम पर डीएल इन फीमेल, जो आपको लेवल मिलेगा. नेक्स्ट इज सोर्स, आयरन सोर्स. सो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था देयर आर टू सोर्स फॉर आयरन. दो सोर्स थे. वन इज द नॉन वेज एंड सेकंड वन इज वेज. वेरी गुड. So when you are a non-vegetarian, there will be less chance for developing iron deficiency anemia. But if you are a vegetarian, there will be higher chance for developing this iron deficiency anemia, because when you are having non-veg, this will contain more iron. Non-veg में क्या होता है? ज़्यादा iron होता है. When you are eating vegetarian food, it will having less iron. So this is the first thing. Second thing, when you are eating non-veg, it will having more iron, as well as it will having more absorption from GIT. GIT से absorption भी ज़्यादा किसमें होता है? Non-veg में. It will absorb approximately 10% of total iron जो आपने लिया उसका 10% absorb होता है. When you are eating a vegetarian diet, it will has less iron as well as less absorption. It will absorb only 1 to 2% iron. जो आपने लिया उसमें से कितना absorb करेगा? 1 to 2%. So एक बड़ी प्रॉब्लम है नहीं वेजिटेरियन में. This is a big issue because in non-veg the amount of the iron is high as well as absorption rate is also high. In vegetarian food the amount of iron is less as well as the absorption rate is also less. So उनमें iron deficiency anemia vegetarian persons में होने के chances क्या है? बहुत ही ज़्यादा है. याद रहेगा? तो आज से ही हाँ जो है वही रहना है, चेंज नहीं करना. नेक्स्ट, अदर फैक्टर की बात करें आयरन में, एब्जॉर्प्शन. आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? जीआईटी से होता है. वेरी गुड. आयरन एब्जॉर्ब कहां से होता है? सो इट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में सेकंड पार्ट, कौन सा सेकंड पार्ट?
ये किसने बताया सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट? ऐसा क्या होता है? सेकंड पार्ट कुछ नहीं होता है. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. ऐसे आंसर नहीं होता है एग्जाम में. ये ड्यूडेनम का पहला पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट. दूसरा पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट. तीसरा पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट है. यू शुड रिमेंबर द नेम, सो इट विल बी मोर इजी. आप बुक में जहां पे लिखते हैं उसमें नाम लिखें. फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज jejunum, and third one is helium. It is very easy to remember. And from which part it will be absorbed? Jejunum, duodenum. So we have different answers from different. इधर से अलग, उधर से अलग, बीच में से अलग. So the highest amount of iron is absorbed from the duodenum, or in your language first part. Which part? First part or the duodenum, जो आपको सबसे ज्यादा पार्ट में क्या करता है? हाँ, duodenum का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को नहीं समझना है, वो छोड़ो उसको. तो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? duodenum से. याद रहेगा? Yes or no? Very good. उसके अलावा when you are having iron, few point you remember, iron absorption में कुछ फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. The one point is diet. If you are taking iron at empty stomach, or if you are taking iron after meal, which one will get more better absorption rate? So when you are taking iron as an empty stomach, it will absorb very fastly and very quickly, and better amount of iron will be absorbed. And if you are taking iron as a after meal, it will absorb less. And specifically if you are taking iron with dairy products, the absorption will more less. Absorption क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा. So all the dairy products should be avoided with iron. You should not take iron with meal. It should be taken empty stomach. So absorption will more better. The vitamin C or all the citric contained food, जो भी खट्टे खट्टे होते हैं citric वाले, that will increase the rate of absorption of the iron. So it will better to take vitamin C supplement with this iron, or you can take all the citric fruits जो होते हैं वो आप उसके साथ में खाएं. उससे क्या होगा? absorption ज्यादा होगा, better absorption आपको देखने को. क्लियर? नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है एग्जाम का, एक फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, लाइक अभी एमएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि इन प्रेगनेंसी द आयरन रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज. कितनी इंक्रीज हो जाती है? कितना इंक्रीज होता है? अमाउंट ऑफ द आयरन शुड बी टेकन. नॉर्मल ले रहे हैं उससे एक्सेस कितना लेना है? ये भी नहीं पता है. यू डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन. मैं बोलूं कि मुझे नहीं पता तो ठीक है, आप बोलो नहीं हमें भी नहीं पता. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर बॉडी वेट. 1 kilogram required 1 mg in pregnancy extra amount of iron. So normally a person weight is 60 to 70 kg, normal adult person, and in female it is not 60, female is 70, it is little bit less. Female is having average weight is 60 kg and male is having average weight is 70 kg. So in a pregnant female you required 60 mg the element iron, extra iron जो आपको required होता है. कितना है? 60 mg iron नहीं चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है? और बच्चे में भी तो खून बनाना है, नहीं बनाना है? बच्चे को भी तो आयरन चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे में प्रॉब्लम हो जाएगी. हेमोलाइसिस एनीमिया, पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम. चलो भैया आ जाओ, इधर आ जाओ. नॉर्मल लेवल ऑफ आयरन कितना है? 2 to 5 ग्राम. सो ओके, पहले ये वाला लिखा हुआ है. मेल इज हैविंग 75 to 175 माइक्रोग्राम पर डीएल, एंड फीमेल इज हैविंग 65 to 165 माइक्रोग्राम पर डीएल. एज वी नो दैट इन फीमेल देयर इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इज नोन एज menstrual cycle, and during menstrual cycle huge amount of blood is lost, and that loss also contain iron. and इसी वजह से फीमेल के अंदर आयरन का कंटेंट थोड़ा क्या होता है? लेस होता है कंपेयर टू मेल. मेल, डू यू थिंक मेल इज आल्सो लूजिंग आयरन एक्टिवली? मेल इज आल्सो लूजिंग आयरन और नॉट? इफ somebody asks you how much iron is losing per day in your body, कितना आयरन लूज होता है? कितना आयरन लॉस करते हो आप? So it is approximately near to 1 to 1.5 gram loss होता है. 1 gram is in male and 1.5 gram in female. We know that female is losing iron like in menstrual flow and some other जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मेल में कैसे लॉस होता है? How the male is also losing iron? नहीं पता. आरबीसी से प्लेटलेट बनता है, रिस्ट्रिक्शन वाला आरबीसी रिस्ट्रिक्शन. सो उसमें तो मैंने लिखा है आयरन विल बी अगेन रीयूज, स्टोर हो जाएगा, बाहर नहीं जाता है, सारा नहीं जाता है, सारा नहीं जाता. ओके, सो मैं पूछ रहा हूँ कि लॉस किस रूट से हो रहा है, कहाँ से लॉस हो रहा है? लाइक इन फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू बाहर निकल रहा है. इन मेल फ्रॉम व्हिच सिस्टम और फ्रॉम व्हिच रूट और फ्रॉम व्हिच वी कैन से थिंग जिसके थ्रू आयरन बाहर निकलता है? GIT. So in our body, in male body, the iron which is lost, that will be lost, measure approximately 99% iron which is lost in your male body, that will be through the stool. किसके साथ loss होता है? Stool. A little bit role is played by urine also, but major role played by stool. GIT के through loss होता है. As well as in female also losing through the GIT plus menstrual flow. That's why in female 1.5 and in male 1. याद रहेगा? Next. Normal blood level of iron is 2 to 5 gram and average is 3 gram. Average पूछे तो 3 gram and reference is 2 to 5 gram. Next. 1 to 2 mg per day iron is lost. 1 से 2 mg, मेल में 1 mg पर डे और फीमेल में 1.5 mg पर डे. अभी बताया था mg बोला नहीं, ग्राम बोला था. जब आपने ग्राम लिखा तो उसको mg कर ले. हाँ वो ग्राम ही चल रहा है तो उसको चेंज mg है नॉट ग्राम. और ये लॉस कहां से होता है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट. 1 to 2 mg, जितना लॉस होता है उतने आपको क्या लेना होता है? वापस डाइट के थ्रू एब्जॉर्ब करवाना होता है. सो 1 to 2 mg न्यू आयरन शुड बी एब्जॉर्ब इन ए डे. जितना लॉस उतना वापस क्या करना है आपको? ओके, क्वेश्चन था इसके अंदर. अ पर्सन इज सफरिंग विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. व्हाट विल बी द कॉज फॉर दिस प्रॉब्लम? कॉज क्या होगा इसका? हेमरेजिक. पर्सन इज सफरिंग विद व्हिच प्रॉब्लम? Iron deficiency anemia. So the cause is hemorrhagic. I am giving you all the 4 options: hemorrhagic, protein deficiency, iron deficiency, or the hemolytic. Very intelligent question. और ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है. What is the possible cause of iron deficiency anemia in a person? And there are 4 options. One is iron deficiency in body, protein deficiency in body, bleeding, or the hemolysis.
क्या होता है? So the right answer is bleeding or the hemorrhage. Bleeding or hemorrhage. Remember that whenever a person is suffering with iron deficiency anemia, it will not occur immediately in case of iron deficiency. जब भी iron deficiency होती है कभी immediately नहीं होगा, because we have a stored form of iron which is present in our GIT. मैं भी बताऊंगा आपको stored form होता है, वो वहां से रिलीज करेंगे और वो आपको यूटिलाइज हो जाएगा. But in case of bleeding, when blood is continuously losing out from the body, the hemoglobin जिससे आयरन मिलता है वापस रियूज होता है, that will be lost continuously from the blood, and उस कंडीशन में बॉडी में जो एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के हाईएस्ट चांस होते हैं. इसीलिए जब भी कोई पर्सन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर चेक करता है और देखा कि कौन सा एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इमीडिएटली इफ देयर इज नो एक्टिव ब्लीडिंग देन दे विल गो फॉर एंडोस्कोपी. वो तुरंत किसके लिए जाते हैं? एंडोस्कोपी जाते हैं. व्हाई? बिकॉज टू रूल आउट एनी टाइप ऑफ इंटरनल हेमरेज इन द जीआईटी. जीआईटी में कोई ऐसा इंटरनल हेमरेज तो नहीं हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. दे विल गो फॉर स्टूल टेस्ट, तेरी ब्लड कलर स्टूल इज देयर और नॉट, तो उसे एक्टिव ब्लीडिंग का पता चलेगा. सो ये हमेशा ध्यान रखना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नेवर प्रेजेंट इमीडिएटली इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. उससे होगा लेकिन वो क्रॉनिक प्रोसेस के बाद होगा. लेकिन ब्लीडिंग और हेमरेज अगर है तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस बहुत ही क्विक और इमीडिएट होगा. नेक्स्ट, ये लिख लिया. और ये क्या लिखा है? 1 mg आयरन इन 1 ml आरबीसी. अगर 1 ml आरबीसी है तो उसमें कितना आयरन होगा? 1 mg हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन. एंड दिस इज द टैबलेट फेरस सल्फेट. ये आयरन आज भी एनीमिया खत्म नहीं हुआ अभी तक. लिख लिया. सो एनीमिया होने के बाद सिर्फ एक ही क्लास होगी जिसमें हम सारे पढ़ लेंगे, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, जो भी है सारे पढ़ लेंगे. लिख लिया. चलिए आगे. नेक्स्ट इज दिस इज द टैबलेट व्हिच इज अवेलेबल इन फेरस सल्फेट. 200 mg tablets, oral tablets are there. So when you are taking a oral tablet or when you are taking a liquid form of iron, दो फॉर्म ले सकते हैं. इंजेक्शन अलग पढ़ेंगे, पहले हम दो टैबलेट और लिक्विड की बात कर रहे हैं. सो व्हेन यू आर टेकिंग अ लिक्विड और व्हेन यू आर टेकिंग अ इंजेक्शन, तो सिरप फॉर्म, व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव और मोर बेटर एब्जॉर्ब इन आवर जीआईटी, द टैबलेट फॉर्म और द लिक्विड प्रिपरेशन? So the tablet form will absorb less compared to the liquid or syrup form. That's why most of the time doctor will prescribe you a iron syrup compared to the iron tablet. But the problem is when you are having iron liquid, the iron will stain your teeth. दांत खराब कर देता है, काले काले दांत हो जाते हैं. So the doctor will advise you either you will take this syrup with a straw or you will take in a spoon. चम्मच में लेना है, posterior part of the tongue पे सीधा डालना है. So it will not touch on your teeth. And frequent माउथ क्लीनिंग जो है माउथ वॉश वाटर से करना है ताकि स्टेनिंग नहीं होवे. सो ये ध्यान रखना है. एंड व्हेन यू आर हैविंग आयरन सप्लीमेंट लाइक टैबलेट और एनी टाइप ऑफ सिरप फॉर्म, इट इज वेरी कॉमन एंड इट शुड बी it should be give education जो हम बात करते हैं पेशेंट के लिए, health education or the drug related education should be given to the patient that your stool color will be in the changed dark gray color stool will be there. ऐसा ना हो पेशेंट 2 दिन सिरप खाया, टैबलेट खाया और तीसरे दिन स्टूल देखा डर के भाग गया, ये क्या हो गया, मेरा क्या होगा. पहले तो ध्यान से उसको पहले बता देना कि इट विल बी, होता है कभी-कभी लाइक टैबलेट खा लिया इसका, लाइक हम पढ़ते हैं इसमें कौन सी टैबलेट, रिफाम्पिसिन. इफ यू आर टेकिंग रिफाम्पिसिन और फिनाजोपाइडिन, दैट विल प्रोड्यूस ऑरेंज और रेड कलर यूरिन. इफ यू आर नॉट गिव एडवाइस टू द पेशेंट, आपने एडवाइस नहीं किया, पेशेंट को बताया नहीं, तो टैबलेट लिया, सुबह उठेगा रेड यूरिन, वो डर के भाग जाएगा, मेरा तो खून आ रहा है. और खून नहीं आ रहा है, दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग एंड डरना नहीं, इससे कुछ नहीं होगा. सो ये सारी इंफॉर्मेशन. वन मोर थिंग विद आयरन, दैट आयरन इज अ type of substance which can cause constipation very commonly in your body, in your GIT. So whenever you are giving supplement to the patient, always we provide stool softener to the patient so person will not suffer with constipation, as well as the fiber diet and water intake, hydration therapy, full water intake करना है ताकि constipation नहीं हो. So next क्या है इसमें, ferrous sulfate. The ferrous sulfate widely used in oral preparation. 100 days iron tablet should be given to pregnant women. Iron जो supplement है वो pregnancy से पहले start करते हैं, बाद में start करते हैं. Before कितने दिन पहले? So before 3 months, before the planning, whatever days or whatever time they are planning, जो भी कपल जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग के 3 मंथ पहले से क्या होना चाहिए, आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट होना चाहिए. यानी जब 90 डेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो प्लान करें कि नाउ जो फैमिली प्लानिंग है वो करनी है, तो 90 डेज सप्लीमेंट आयरन शुड बी गिवन टू द प्रेग्नेंट फीमेल बिफोर प्लानिंग. नेक्स्ट, 60 mg आयरन अभी बताया था, शुड बी सप्लीमेंट टू प्रेग्नेंट लेडी पर डे. पर दिन कितना चाहिए? 60 mg एलिमेंट आयरन. ये सारे वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं जो आपके ईएसआईसी के अंदर आएंगे और आप इनका आंसर बिल्कुल दे पाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं. यस, दे पाओगे बिल्कुल. सबको सिलेक्शन लेके आना है, पास में सेंटर है, तो बिल्कुल चेहरे खिले हुए हैं. आपका कॉन्फिडेंस बता देना चाहिए कि बिल्कुल इस बार मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अब नॉट सेट में. क्यों? क्योंकि मैं तो ये सीसी में सेलेक्ट हो गया. रिजल्ट आए नहीं आए पर आपका चेहरा बताना चाहिए, और ये सबको पता होता है अंदर से कि रिजल्ट कैसा रहेगा. एवरीवन नो दैट, जानते नहीं जानते कि मेरा पेपर कैसा हुआ, क्या रिजल्ट आने वाला है. हाँ बस हम ऊपर से पेज बनाए, मैं तो ऐसे ही दिया था, ज्यादा पढ़ा नहीं था. बाकी मुझे तो नॉट सेट देना है, वो नॉट सेट इसलिए देना है क्योंकि आपको समझ आ गया कि इसमें होने वाला है. अरे नहीं होने वाला मुंह में पहले आता है. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव और बिल्कुल रिजल्ट अच्छा ही आएगा सबका. बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. और पेपर के इट्स लाइक इंस्ट्रक्शन में कुछ आप पूछ रहे थे कि रीजनिंग मैथ्स का क्या लिखा हुआ है, तो जो एडमिट कार्ड है उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है. एडमिट कार्ड के ऊपर कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि रीजनिंग मैथ्स कुछ आएगा. और बाकी जो वेबसाइट और चैनल वाले होते हैं उनका काम यही होता है भटकाना, इधर उधर भ्रमित करना. और ऐसे चैनलों से दूर रहे, भ्रमित ना हुए. अभी तक ईएसआईसी ने कोई स्टैंडर्ड सिलेबस इस बार नहीं दिया कि क्या आएगा. सो आप प्रिपेयर रखें सिर्फ नर्सिंग के लिए. बाकी कुछ आता है तो देखेंगे वहीं पे, मैं वही रहूंगा, डोंट वरी. गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. हाँ तो वो जो क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं कर दूंगा, बाकी देख लेंगे. नेक्स्ट, आयरन एब्सॉर्ब. सो इट इज द ब्रस्ट बॉर्डर ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज नोन एज duodenum. और एंट्रोसाइट जो होती है सेल आपकी जेटी के वहां से, तो duodenum पार्ट से क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है. और यू कैन से अपर स्मॉल बॉर्डर, तो ये से ज्यादा क्या लिखा है duodenum. द नेक्स्ट इज
Due to excessive loss of iron from body, decrease iron intake or decrease absorption of iron from GIT. एनीमिया होने के रीजन क्या हो सकता है? तो आंसर क्या है? एनीमिया अकर ड्यू टू, क्या लिखेंगे आप पहले? एनीमिया, एनीमिया होने के ड्यू टू एक्सेस से, तो ड्यूडेनम पार्ट से क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज नोन एज ड्यूडेनम, और एंट्रोसाइट होती है सेल आपकी जेटी के वहां से, तो ड्यूडेनम भटकाना, इधर उधर भ्रमित करना, और ऐसे चैनलों से दूर रहिए, भ्रमित ना हुए। अभी तक ईएसआईसी ने कोई स्टैंडर्ड सिलेबस इस बार नहीं दिया कि क्या आएगा, सो आप प्रिपेयर रखें सिर्फ नर्सिंग के लिए। बाकी कुछ आता है तो देखेंगे वहीं पे, मैं वही रहूंगा, डोंट वरी। गर्ल्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाँ, तो वो जो क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं कर दूंगा, बाकी देख लेंगे। नेक्स्ट, आयरन एब्सॉर्ब, so it is the brush border of upper small intestine which is known as duodenum, और एंट्रोसाइट्स होती है सेल आपकी जेटी के वहां से, तो duodenum पार्ट से क्या होता है? एब्सॉर्ब होता है, और यू कैन से अपर स्मॉल बॉर्डर, तो ये से ज्यादा क्या लिखा आप? duodenum। नेक्स्ट इज ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन फ्रॉम बॉडी, डिक्रीज आयरन इंटेक और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी। एनीमिया होने के रीजन क्या हो सकता है? तो आंसर occurs due to, तो आंसर क्या है? डिक्रीज आयरन इंटेक और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी। द नेक्स्ट इज ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन फ्रॉम बॉडी, डिक्रीज आयरन इंटेक और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी। एनीमिया होने के रीजन क्या हो सकता है? तो आंसर क्या है? एनीमिया अकर ड्यू टू, क्या लिखेंगे आप पहले? एनीमिया occurs due to excessive loss of iron from body और decrease iron intake और decrease absorption of iron from GIT। एनीमिया कौन से टाइप का होगा आपका? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। सो due to the excessive loss of iron or decrease absorption or from the GIT, that will lead to microcytic hypochromic anemia। तो याद रहेगा कहां से एब्जॉर्ब होता है? तो आंसर इज ड्यूडेनम। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई द फूड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो आप क्या आंसर दोगे? So you know that the absorption is present at this is the esophagus, this is the GIT tract, stomach, and then your intestine। ये सीधा intestine है, ऐसा वैसे होता नहीं है। So this is the part of stomach which is known as duodenum। यही होता है इधर। Now here the pyloric sphincter, here the cardiac sphincter। When you are having any type of food, this will reach here, and at the stomach it will start absorption होना start होगा। Whatever amount or whatever content is absorbed, जो भी absorption जो stomach से होना है, उसको complete करने के लिए ये sphincter क्या हो जाता है? Close। Whatever thing which is present in the food, which is absorbed from the stomach, and for that purpose this pyloric sphincter is completely closed। जब तक यहाँ पे absorption complete नहीं होगा, till that time the sphincter will not open, and जब sphincter open नहीं होगा तो ये food content नीचे move नहीं करेगा। now ये खाना खाने के बाद आपने क्या लिया? iron। iron भी आके इसके साथ क्या हो गया? fixed। now the iron will absorb from duodenum, but the sphincter is closed, और ये इसको आगे जाने नहीं दे रहा है। so ये यहाँ प्रेजेंट रहेगा लॉन्ग टाइम तक, और उसके बाद जब ये ओपन होगा तब नीचे जाएगा, और इसकी वजह से इसका absorption क्या होगा? लेस होगा, लेस absorption will be there। clear? next, iron does have two form in body। कितनी फॉर्म होता है? दो form। The first one is the functional form, which is the most common and highest number जो आपको मिलता है। It's a functional form, 80% amount of the iron is present in your functional form, and in functional form in hemoglobin the highest amount of iron is present, that is 80। so iron की बात करेंगे दो टाइप के, functional form and non functional form या storage form जो हम बोलते हैं। functional form approximately 80% and storage is 20% जो हम देखेंगे, and out of 80% 80% is present in your hemoglobin, and the remaining 20% is your second is myoglobin। so 5% and one is for enzymes। कुछ enzymes भी होते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत होता है used by enzyme like cytochrome। so these are the three functional form of hemoglobin, the myoglobin and the enzymes use करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम आयरन किसमें रहता है, तो फंक्शनल फॉर्म में। एंड इन स्टोरेज फॉर्म 20%, स्टोरेज कहाँ होता है, कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है आयरन? फेरेटिन एंड और भी होता है, बताया था। फेरेटिन इज द 2/3 पार्ट, जो 20% है उसका 2/3 किसमें होगा? फेरेटिन में होगा, एंड 1/3 पार्ट ऑफ दिस iron is out of 20%, 1/3 is stored in hemocysteine form। so these are the two form of iron which is in storage form, the ferritin form and the hemocysteine form। moving form is, moving form को क्या बोलते हैं? like functional form जो है उसको हम क्या बोलेंगे? फेरेटिन, फेरस अलग अलग होता है। सो मूविंग फॉर्म कौन सा होता है? फेरिक, फेरस, ट्रांसफेरेटिन, और जो हम लेते हैं वो फेरस। सो व्हेन वी आर हैविंग द आयरन दैट इज in Fe+2, when this will absorb from GIT and it mix in the blood, that will be converted Fe+2 to Fe+3, that is transferrin। so ये थोड़ा डिफरेंस है। when this Fe+3 stored in your liver or any other part, that will be ferritin, stored form क्या हो जाएगी? ferritin। next देखिए, in everywhere of the country रेनी सीजन जो है पूरी तरह से वो अपना प्रकोप दिखा है ना। वी आर इन जोधपुर, एंड बारिश लाइक वो होता है ना, आने की कोशिश करी पर आ नहीं रही है।
सो बस क्या करें, है आएगी, आ जाएगी, नहीं आएगी, मूव करें। यहाँ पे जोधपुर में जब आप 1-2 साल रह लेते हैं तो उसके बाद आप समझ जाते हैं कि बारिश नहीं आई, वो हमें पता है पहले ही नहीं आएगी। कभी बारिश आ जाती है तो लोग शौक हो जाते हैं, बारिश कैसे आ गई, और फिर आप देखते हैं लोग बह के मर जाते हैं। लाइक अभी पहले दिन बारिश आई, एक आदमी मर गया, एक लड़का मर गया, जो आईएएस बनने वाला था वो मर गया। नेक्स्ट, अभी कुछ ही दिन पहले बारिश हुई थी, अरे आप लोग बातें बंद कर दो। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और बारिश होने से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इज वर्स्ट सिस्टम, सबसे खराब सिस्टम जोधपुर का ड्रेनेज सिस्टम। सो पानी बहुत हो गया था, बाढ़ आ गया था कुछ देर के लिए, और उस बाढ़ में एक नाला बह रहा था, बहुत बड़ा नाला से। सो एक बच्चा वहां गया और वो उसमें बह गया। ही इज 22 ईयर ओल्ड एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर, आई डोंट नो आईएएस की प्रिपेयरिंग करा नहीं कर रहा है, बट उसमें उसने उसके जो भी थे उन्होंने बताया इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एंड ये कलेक्टर बनने वाला था, और बनने वाला ही था क्योंकि वही नहीं तो था ही है, और सबको पता है बनी सब बन जाता है, तो अभी एग्जाम देता है, इस बार बनने वाला था कलेक्टर, पर अब क्या हो गया, भगवान को प्यार हो गया। सो भाई जब कलेक्टर बनना था तो उस नाले में क्यों गया उधर है, जब आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उधर बारिश में कहीं पढ़ाई करो, कलेक्टर में क्या करना है वहां जाके। नाउ नेक्स्ट थिंग, ऑल द ब्लेम इज ऑन द प्रशासन जो होता है ना, लाइक ये एमपी एमएलए और जो भी अदर जो भी कलेक्टर है, आपने नाला क्यों नहीं बनवाया, और ठीक है नाला नहीं बनवाया तो आप नाले में क्यों गए हैं, नाले के पास जाना भी तो गलत था, इतना पानी बह रहा है और नाले में जा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं हम तो आईएएस बनने वाले थे। सो बेटर है अपने आप को सेफ रखे, इधर उधर नहीं जाए बारिश में, कुछ भी पता नहीं बारिश कब हो जाए और यहाँ बाढ़ आ जाए और हम स्विमिंग पूल की तरह ऐसे स्विम कर रहे होंगे। नेक्स्ट, आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, मेरी जो वॉइस है वो बहुत है, आपको भी वही सुननी है, चाहे वो अच्छी है या नहीं है, और मेरे को वही सुनानी है, उसके अलावा आपकी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इट इज माइन क्लास, मेरी क्लास है। अगर अदर क्लास में हो सकता है आप लोग बोलते होंगे या नहीं बोलते होंगे, पता नहीं आप कैसे रहते हैं, आप इनोसेंट है अग्रेसिव है पता नहीं कैसे हैं, बट इन माई क्लास आई रिक्वायर योर इनोसेंट फेसेस ओनली। अगर थोड़ा सा भी आपने जो साउंड करने की कोशिश करी तो गेट पूरा ओपन करके, हाँ तैयार बाहर सीटें बना के अभी तो चट उतरने के लिए भी डायरेक्ट है ना। तो इसीलिए साइलेंटली ये लिखते हो तब तक मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं ये पीपीटी पता नहीं, मैं इस बार सर की पीपीटी है और उसको देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें पता नहीं आपकी नॉलेज में है या नहीं है, जो आपकी बुक है उसमें पूरा मैंने देखा नहीं बुक्स, इसलिए अगर बुक में सेम ही है तो अगली बार तो मैं इतना टाइम दूंगा नहीं आपको, सेम है बुक में नहीं है, वो वही नहीं होगा जो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ था भी नहीं, मैं लिखता हूँ सारा, एक्स्ट्रा जो चीजें होती है वो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, तो वो नहीं होगी तो वो एड करवा देंगे अगली बार, है ना। इनटेक ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी इन टू फॉर्म, यस अभी बताया थोड़ी देर पहले, कौन कौन सा, अरे वो टाइप नहीं, नॉन वेज और वेज, वेज और नॉन वेज, व्हेन यू आर हैविंग आयरन थ्रू नॉन वेज दिस इज नॉन एज, कल परसों बताया था हिम आयरन, एंड व्हेन यू आर हैविंग iron from vegetarian diet, that is inorganic iron, बताया था परसों। So one question which previously asked in the exam, that which of the following type of iron is having more better bioavailability, नॉनवेज नहीं होता है, नॉनवेज समझने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ नॉनवेज लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ हिम आयरन लिखा होगा और वहाँ इनऑर्गेनिक आयरन लिखा होगा, आपको पता होना चाहिए हिम आयरन इज एन iron which is received or which we are taking from non-vegetarian diet, and if you are having iron from vegetarian diet that is known as inorganic iron. So ज्यादा कौन सा bioavailability के साथ होगा, him iron. So the animal product meat that will give you an him iron, and if you are taking from the vegetarian food that is provide you an inorganic iron. So better bioavailability किसकी है, high bioavailability, it will provide you approximately nearby 10%, and it will provide you approximately nearby 1 to 2% absorption, 10% absorption जो लिया आपने उसमें से, और 1 to 2% absorption जो आपने टोटल लिया वेजिटेरियन डाइट में। सो नेक्स्ट टाइम हिम आयरन और इनऑर्गेनिक आयरन वर्ड आएगा तो आपका माइंड में वो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हिम आयरन इज रिलेटेड टू नॉन वेज, एंड द वेजिटेरियन जो आएगा उसमें इनऑर्गेनिक आयरन। दिस इज क्लियर, मूव करें नेक्स्ट। एक बार फिर से कल टेस्ट होगा और उसके लिए आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, यस, और होपफुली एवरीवन विल रिसीव अबव 90, सो आई विल प्रोवाइड यू, याद है ना, मैं भूल गया हूं पर आप लोग नहीं भूलना है, आप लोग याद दिला सकते हो, डोंट वरी, एक्चुअली इट्स अ वेरी बिजी शेड्यूल्ड, मेरे पास शेड्यूल बहुत बिजी होता है, एंड आई एम डूइंग होल जो भी वर्क होते हैं मेरे, मैं सेल्फ करता हूँ, किसी से नहीं करवाता हूँ, लाइक फ्रॉम द मॉर्निंग आई एम स्टार्टिंग डूइंग माय ऑल द वर्क, एंड अगर जो मैं आपके बात करना चाह रहा हूँ, आपको 5% को जो मुझे वो लास्ट टेस्ट वाला जो गिफ्ट कल तो मैं ले आऊंगा कंफर्म 100%, कल मेरा एक ही क्लास होगा, टेस्ट होगा तो, सो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मैं सीधा हॉस्पिटल से आता हूँ और फिर सीधा क्लास स्टार्ट करके 7:30 बजे फ्री होऊंगा, फिर घर जाना है वापस, तो इसलिए मैं जाऊंगा लेके आऊंगा आपके लिए, मैं किसी को नहीं भेजता हूँ कि आप जाके लेके आ जाओ, नो। एक हिंदी में एक वर्ड होता है इसको बोलते हैं स्वावलंबी, जानते हो, सेल्फ डिपेंडेंट। सो हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना बेस्ट होता है। सो जो भी करना है खुद करो, अपना काम तो कम से कम खुद कर ही सकते हैं। आप लोग अपनी प्लेट साफ करते ही हो, करते हो नहीं करते हो, एज लाइक आई एम आल्सो वॉशिंग माय प्लेट एवरी डे इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, व्हेन आई एम पुटिंग माय प्लेट इन द सिंक, आई एम इजी, बस 5 सेकंड लगता है, क्या हो गया, क्या टाइम लगा उसमें, है लगता है टाइम। सो ये होना चाहिए, ये थिंग्स जो है आपके अंदर होनी चाहिए, आप दूसरों के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना है, जब भी हम डिपेंडेंसी लाते हैं फिर लॉस होता है अपना, जब भी लाइक इन द मॉर्निंग
Always I'm prepare my मेरा जो breakfast मैं खुद ही prepare करता हूँ. I'm going hospital by 7 p.m. 7 a.m. Before 7 I will prepare the breakfast and I eat and drink milk and then bathing everything and then I went to hospital. So उसके लिए कुछ भी मुझे ये नहीं है कि करना पड़ेगा. क्यों करना है? आप ये तो खाना है, मुझे तो खाना है. और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? फर्स्ट थिंग जो आपकी इच्छा हो खा सकते हो बना के. ये कहो बनाए पता क्या बनाया मैं नहीं खाऊंगा. नहीं तो आपने खुद ने बनाया, पसीना हुआ, गर्मी हुई तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. ये सब नो. अगला पर्सन बोल नहीं सकता मैंने तो ये किया वो किया, क्या किया मैंने, सब किया अपने आप से. सो हमेशा ध्यान रखें, मैं कोई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ. बेटर है कि आप दूसरों के लिए भी बना के रखो, ये आपके लिए भी रखा है, वो भी एंजॉय, तो हमारे लिए भी खाना बना के रहे हैं. चलिए आगे नेक्स्ट. etiology for the iron deficiency anemia. Etiology means cause. So iron deficiency anemia के दो cause हमने पढ़े यहाँ पे. One is excessive loss of iron from the body और second one is decrease intake or decrease absorption from the diet. दो ही possible cause हो सकते हैं. One is loss and second one is absorption. So etiological factor में dietary inadequacy, that is poor intake. Second one is the blood loss, chronic blood loss. Syndromes of GI malabsorption. GI is not absorbing the iron. With diet increase demand, in case of pregnancy you need more iron and you are not eating that much amount. अगर आपका डिमांड बढ़ा लेकिन खाओ उतना नहीं रहा तो उसमें भी क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा. रिस्क फैक्टर में कौन कौन आते हैं? सो प्रीमेच्योर बर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज आयरन स्टोर्स. क्लियर है ये? जब प्रीमेच्योर बर्थ होगा उस टाइम आपका जो स्टोर आयरन है उसके कम होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं. ब्लड लॉस होता है बहुत सारा. इंटेक आपने कम किया है प्रेगनेंसी के अंदर और जो प्लानिंग थी उससे पहले आयरन नहीं लिया. नॉर्मली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी आर गिविंग आयरन और नॉट? इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर द आयरन इज गिवन टू द प्रेग्नेंट लेडी और नॉट? है सोचो रे. सो आयरन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते होते तो आप 100 डे पहले 90 डेज पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? So remember that iron should not be given in first trimester. In first trimester, we are providing folic acid only. In first trimester, folic acid, and before planning for 90 to 100 days to provide the iron. And after first trimester, when the organ genesis is completed, now the growth and development phase is starting. That time you will provide the iron supplement. So वो बाद में start होगा, पहले या फिर बाद में, बीच first trimester में provide नहीं करते. Next, देख लिया? It is not working. ये भी जवाब दे रहा है, मैं भी बहुत हो गया बस. लिख लिया? Next, कल सभी पढ़ के आएंगे अच्छे से. अरे 100 में से 90 नंबर लाना कोई डिफिकल्ट होता है? It is difficult task. किस किस को लगता है बहुत डिफिकल्ट है? कोई नहीं है ना, तो कल फिर कितने गिफ्ट लेके आने गिन लो अपने आपको. 300 400 कोई नहीं, गिफ्ट नहीं तो मैं सबको फोन पे कर दूंगा, पर आप लाओ तो सही नंबर है, लेके तो और नंबर लाओ पहले. नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. सो व्हेन द आयरन अमाउंट इज लेस, द मेजर प्रॉब्लम इज आयरन कम होगा तो क्या होगा? आरबीसी प्रोडक्शन रिड्यूस, एंड आरबीसी प्रोडक्शन कम होगा तो बॉडी में एनीमिया हो गया. एनीमिया होगा तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो क्या होगी? प्लेस. तो उसी से रिलेटेड सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे. द सिम्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन द पर्सन बॉडी इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन. सो क्या होंगे देखिए यहाँ पे, स्किन इज पेलर, साइनोसिस के सिम्टम आएंगे, वीकनेस एंड फैटिग बिकॉज़ ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, टिनिटस. व्हाट इज टिनिटस? murmur, these are related to ear, palpitation, tachycardia because of less amount of oxygen. So these are few symptoms which is present in the person related to iron deficiency. Skin color as well as the nail color. जब हम साइनोसिस की बात करते हैं, the main part is nail, which is used very commonly because in skin color, few person is having dark skin, few person is having light skin, and few person is having very dark skin. So we are not able to identify the exactly according to the color the cyanosis. Color से cyanosis को पता लगाना difficult होता है. So we will go with the color of the nails. Nail का color सबका same होता है, and very easily we find out that पता नहीं देखते बोलता है इसको तो हीमोग्लोबिन कम है. देख लेते व्हाइट व्हाइट नेल है तो क्या हीमोग्लोबिन लेस है. डॉक्टर यही कहता है नेल दिखाओ, फिर बोलता है आयरन खाओ, हीमोग्लोबिन कम है. यस और नो? सो नेल्स टेस्ट हम करेंगे. नेल्स के रिलेटेड भी एब्नॉर्मलिटीज मेंशन है. लिख लिया? दीस आर द नेल्स. दिख रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे से नेल्स रखे इन्होंने हैं. कितने बड़े बड़े नेल्स रखे हैं, पेशेंस हो में जाना इनको. दिस इज द नेल व्हिच इज ऑन ए स्पून लाइक नेल. दिख रहा है कुछ? इट्स अ डिप्रेस्ड नेल. यहाँ पे डिप्रेशन है ये. सो इट्स अ डिप्रेस्ड स्पून लाइक नेल. And it is a common clinical manifestation of iron deficiency. When person is having iron deficiency, the nail will be like a spoon like nail, which is also known as, that is, nail changes, kilonchia or spoon nail. And whitish और फ्लेट नेल आते हैं कुछ पर्सन्स में. व्हाइट एंड फ्लेट, सीधे ऐसे बेंड नहीं है, फ्लेट नेल है, उसको बोलेंगे दैट इज प्लेटिनोचिया, प्लेट एंड ब्रॉड नेल. सो ये स्पेशल टाइप के नेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं. इसमें मेन स्पून लाइक नेल तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो याद रखना आपको, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है. लो हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट ऑब्वियसली. द नेक्स्ट इज फैटिग, इरिटेबिलिटी एंड मसल वीकनेस. इफ समबडी आस्क यू, ओके डायग्नोस्टिक वाले में पढ़ेंगे उसके बारे में अगली स्लाइड पे. तो नेल याद आएंगे, स्पून लाइक नेल एंड प्लेट नेल, किलोंचिया एंड प्लेटिनोचिया. प्लेटिनोचिया पता नहीं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. The term which is used when someone is not able to pronounce any word correctly or very difficult, having difficulty in pronouncing the word, what is the term is used? Dysphagia. That is difficulty in speech. That is not dysphagia. कल पढ़ के आना क्या होता है. Like dysphagia means अभी मैं जो स्पीच कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, it is okay, ये नॉर्मल है.
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जब मैं किसी वर्ड को स्पीक करने की कोशिश कर रहा हूं लाइक प्लेटियोनचिया, सो इसको मैं जब रीड कर रहा हूं, आई एम हैविंग डिफिकल्टी। सो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है, डिफरेंट टर्म वी यूज। दिस पेज है मतलब पर्सन इज हैविंग डिफिकल्टी इन स्पीक इन एवरी वर्ड और एवरी सेंटेंस, नॉट इन वन स्पेसिफिक वर्ड। हियर द प्रॉब्लम इज विद अ स्पेसिफिक वर्ड एंड वन इज द स्टैमरिंग एंड वन इज द स्टरिंग। These are two different things, ये भी तो अलग थिंग है, सुना इनके बारे में, स्टैमरिंग एंड स्टरिंग, दैट इज हाँ। तो ये तीन चीज आपको पढ़, स्टमरिंग, स्टरिंग, स्टैमरिंग एंड डिफिकल्टी विद अ स्पेसिफिक वर्ड, स्पीकिंग डिफिकल्टी विद अ स्पेसिफिक वर्ड। लाइक बहुत सारे मेरी तरह इसको पहली बार में नहीं पढ़ पाएंगे, वैसे ही क्या टर्म यूज करते हैं, ये लिख लिया। नेक्स्ट सीबीसी। सो मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पूछ रहा था, यहाँ पे व्हाट इज द चेंजेस सीन इन एमसीबी, एमसीएच एंड एमसीएचसी। इसमें जो लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है, आपको बताना है क्या सही है। व्हाट विल बी द चेंजेस प्रेजेंट, ओके हम एक को मान लेते हैं, बाकी तीनों तो आपने सब में वही आएगा सेम, पर एक एमसीबी मान लेते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसमें क्या चेंज आएगा? व्हाट इज एमसीबी? वेरी गुड, आई विल क्लैप फॉर यू। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू एंड मैंने फॉर्मूला भी लिखा था। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मींस if we are discussing about one single RBC, हम किसकी बात कर रहे हैं? One single RBC. So the volume which is occupied by a single number of RBC in total volume which is occupied by whole RBCs, उसको हम क्या बोलते हैं? Mean corpuscle volume. Like हमने already discuss किया था, there is approximately कितना? 55, 45. RBC कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है? 45% वॉल्यूम इन 1 ml ब्लड, ये 1 ml ब्लड है, इस 1 ml में से 0.45 ml ब्लड कौन ऑक्यूपाई करता है? RBC. Out of this 0.45 ml blood, how much amount of the blood or volume is occupied by one RBC? 0.45 तो सारी RBC ने दे रखा है, एक सिंगल RBC कितना वॉल्यूम देती है उसको हम क्या बोलते हैं? MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एंड इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल था, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ RBC। सो आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 90 फेंटोलीटर। वेरी गुड, ये तो याद है। सो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, द साइज ऑफ द RBC इज स्मॉल, साइज इज स्मॉल, एंड व्हेन द साइज ऑफ द RBC इज स्मॉल, लाइक ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक आरबीसी फिल किया और इसका लेवल यहां तक पहुंचा, नंबर इज 5 लाख। नाउ in the same container you filled 5 lakh RBCs, but in this time the size of the RBC is small. Now the level will be reached here or it will be low or it will be up. Same 5 lakhs है, but size क्या इस बार small है, तो लेवल कहाँ पहुंचेगा? नीचे या ऊपर? It will be little bit below side because the size of RBC is small, so the space or the volume will be occupied by the RBC will be less, so MCV will also less. तो यहाँ पे 0.45 की जगह अमाउंट भी कम आएगा, और कम आएगा तो फिर ये अमाउंट भी क्या आएगा? कम आएगा. So that's why MCV will less, MCH will less, and MCHC will also less. But in case of macrocytic RBC, in case of macrocytic RBC, the MCV will increase because a single RBC which is large in the size will occupy more amount of blood. So in case of macrocytic anemia, the MCV, MCH will increase, but in case of microcytic RBC, the MCV will decrease. Next, the peripheral blood film. फिल्म जो सेम स्लाइड के ऊपर हम क्या बनाएंगे, इसकी फिल्म बनाएंगे और उसमें हम क्या देखेंगे? आरबीसी का साइज देखेंगे और आपको साइज क्या मिलेगी? माइक्रोसाइटिक, एंड कलर कैसा मिलेगा? लेस कलर, लाइट कलर मिलेगा. सो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी विल बी देयर. देन सीरम फेर्टिन लेवल. सो सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा? फेर्टिन लेवल आप चेक करो ब्लड के अंदर, और अगर आपको इसका लेवल क्या मिलता है? लो मिल रहा है, तो ऑब्वियसली किसकी डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है? आयरन की डेफिशिएंसी को. देन नेक्स्ट इज लेवल ऑफ फेर्टिन इन योर सीरम. ब्लड में कितना फेर्टिन जो फॉर्म है वो अवेलेबल रहती है? आंसर शुड बी 20 to 250 नैनोग्राम पर ml फॉर एडल्ट मेल, एंड in female 10 to 120 nanogram per ml for adult female. This is the normal level of serum ferritin. Ferritin is a storage form, but a little bit amount is also present in your serum. कुछ अमाउंट में क्या होता है? सीरम में प्रेजेंट रहता है. सो ये सीरम लेवल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोस. एंड लास्ट इज मैनेजमेंट. क्या करोगे मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में क्या करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन देंगे. डायरेक्ट आयरन दे सकते हो, इनडायरेक्ट आयरन दे सकते हो. डायरेक्ट का मतलब ड्रग्स, और इनडायरेक्ट मींस डाइटरी सोर्स. आयरन रिच फूड खिलाओ पर्सन को. आयरन रिच फूड दो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, वेज और नॉन वेज. वेज के अंदर, नॉन वेज के अंदर मीट इज द रिचेस्ट सोर्स, और नॉन वेज के साथ वेज की बात करें तो वेज के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और भी कुछ है, और किसमें होता है आयरन? हाँ, जेगरी, गुड़, गुड़ जाता है, पोटैटो, और भी बहुत सारे लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट है इतनी बड़ी, देखते हैं वो आप न्यूट्रिशन में अच्छे से पढ़ेंगे. ये लिख लिया. सो ये एमसीवी का जो वैल्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम एनीमियास की स्टडी करते हैं और जब आपकी सीबीसी देखता है डॉक्टर, तो वहां पे वो मार्क करता है कि आपका एमसीवी कम है, एमसीएच ज्यादा है, ये कम ज्यादा. तो उससे कैसे पता चलता है? कुछ आया समझ में? यस और नो? नेक्स्ट, दिस इज
Zactofer, it's an injection of iron. So iron injection, जैसे ही आयरन का नाम लगे और आपके अगर इंजेक्शन लग रहा है आयरन का, तो आप 2 महीने तक बुखार मान के चलो. आयरन इंजेक्शन, फर्स्ट थिंग, इट्स a hyperostolar injection, बहुत ही हाई molecular weight के साथ इंजेक्शन है, and the rate of absorption is also very slow, and it's a oily type of injection. So when you are giving iron injection, few problems. If you are not trained properly, अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? One thing, the person will have a tumor like growth, tumor like यहाँ पे बन जाएगा, because you don't know how to give iron. Second thing, there will be higher chance for leakage of iron. Third thing, posture चलने में उसका gait problem ऐसे चलेगा फिर. So to correct this posture gait, you should give equal amount on lower buttocks, so person will move like this, equal हो जाएगा. So iron के साथ क्या ध्यान रखना है? Iron जब भी हम देते हैं तो ध्यान रखें, it should be given, how amount of the iron should be divided in two parts, and half amount given on one buttocks and half amount is given on the second buttocks. So there will be less chance for forming a tumor like growth or stacks on buttocks. Second thing, whenever you are giving iron injection, you should use a jade trick method to prevent leakage of injection. So leak नहीं होगा, drug absorb होगी और काम आएगी. So leakage को prevent करने के लिए क्या करना है? Jade trick method use करना है whenever you are giving iron injection. So क्या है इसमें देखें? Management, IM injection for iron, Jade trick method or IVH is Jactofer is a brand name. हेमेटोक्रेट लेवल असेस बिफोर गिविंग इंजेक्शन, जब आप आयरन दे रहे हैं तो हेमेटोक्रेट चेक करें आरबीसी का लेवल, और फिर आयरन लगाने के बाद वापस देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, आपको पता चलेगा. उसके लिए हेमेटोक्रेट चेक करना है. एंड उसके साथ साथ में इपोजन, अभी बोला थोड़ी देर पहले, सिंथेटिक एथ्रोपोइटिन, इपोगेन, इपोइटिन is a recombinant DNA form of erythropoietin which stimulates the production of RBC and therefore cause the hematocrit to rise. तो आप ये लगा सकते हैं erythropoietin injection subcutaneous, this given subcutaneously. This is the management for iron deficiency anemia. Next we have the supplement for iron deficiency anemia and the dietary factors we'll discuss in the next class tomorrow. Thank you. कल पढ़ेंगे, बचा हुआ कल पढ़ के आएंगे टेस्ट के लिए. थैंक यू.